Okay, yes. I think it started. सही है? Perfect. ठीक है. So, yeah, there are two instances that I've created. Okay, you guys have worked on AWS, right? Yeah. So AWS में दो instances बनाई हैं. Okay, it's a T2 large instance क्योंकि obviously हम इस पे Jenkins install करेंगे, इस पे अपनी pipelines run करेंगे. So हमें थोड़ी सी अच्छी like instance चाहिए थी in terms of compute and memory both. So for that reason, I've created this instance. Okay. So the first thing ever, whenever you create a new instance, you should obviously go ahead and update all the packages on that instance, right? This should always be the first step. Okay, and then, sir, I would be sharing a GitHub link of this repository with you. So अभी भी मैं उसी को use कर रहा हूँ to follow along. So ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा. So anyone who wants to replicate the project, try it on their own, they can. Sure, sure. Okay, so it has all the steps end to end, whatever is required to deploy this particular project. ठीक है, तो अभी भी हम उसी को फॉलो करते हुए जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली इतनी चीज़ें हैं मैं खुद कराते हुए भूल जाऊँगा. So first we create this. Okay, the next thing is we need to clone this project, okay, onto this repository that we've created. So just gonna go ahead and let's clone this repository. Okay, we're gonna go on to the repository. So repository कुछ अगर मैं आपको GitHub दिखा दूँ तो I don't know if it makes sense to show this to you right now, but okay, so there are number of files over here. Okay, ये आप बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम लोग साथ साथ करेंगे, बट द कोर फोकस इज़ नॉट द एप्लीकेशन. हम डिप्लॉयमेंट पे फोकस कर रहे हैं, राइट? सो एप्लीकेशन कैसे बनी हुई है मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं और बाकी चीज़ों में बात करूँगा, लाइक ऑब्जर्वेबिलिटी, डिप्लॉयमेंट एंड ऑल द अदर थिंग्स, राइट? सो वी क्लोन द रिपोजिटरी, राइट? The next thing is we install Docker onto this particular instance. Okay, so I just copy the commands from there. These are the commands to install Docker, and say, create a Docker group, create a user for Docker. So once this is done, we should have the Docker installed on our instance. Okay, we have Docker running. So let's proceed. Okay, so we have a Docker file present already on this particular instance, right? जिसका मैंने आपको दिखाया था. बहुत सिंपल सी Docker फाइल है. उस Docker फाइल के अंदर जाने से पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं. इट्स कॉल्ड TMDB, राइट? द मूवीज़ डेटाबेस, दैट्स द फुल फॉर्म. ये एक मूवी डेटाबेस की API है. तो इस API को आप क्रिएट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सारी मूवीज़ इसके थ्रू जो है वो अपने एप्लीकेशन के अंदर इंजेस्ट करेंगे. तभी आपको वो नेटफ्लिक्स की जिस तरह एप्लीकेशन दिखती है, उसके अंदर मूवीज़ दिखती हैं, सीरीज़ दिखती हैं, वो सब हम ये TMDB के थ्रू फेच करेंगे. सो TMDB पे यू कैन क्रिएट एन अकाउंट, इट्स कम्प्लीटली फ्री. एंड देन यू कैन गो ऑन टू सेटिंग्स, जिससे मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ. यू कैन गो टू API. तो यहाँ पे वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, लाइक योर ईमेल एड्रेस, दिस एंड दैट. तो एक छोटा सा फॉर्म होगा, वो भरेंगे तो आपको API की क्रिएट कर लेंगे अपनी, ठीक है? तो इसी तरह आई क्रिएटेड दिस API की. सो डॉकर फाइल के अंदर हम एज अ बिल्ड आर्ग्यूमेंट यही API की को यूज़ कर रहे हैं. तो वो चीज़ जो है वो वर्थ कंसिडरिंग है. लाइक इफ़ आई शो यू द डॉकर फाइल ओवर हियर, इस डॉकर फाइल के अंदर यहाँ पे ये हम API की को एज अ बिल्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं जब हम डॉकर को बिल्ड कर रहे होंगे. सो बाकी चीज़ें तो yarn इंस्टॉल, yarn बिल्ड, उस चीज़ के अंदर हम अभी नहीं जाते because again core focus is not the application or JavaScript. We have many other things to cover. So moving on. अच्छा, you can try out the application. यहाँ locally भी you can build it, right? Docker build commands use करके, जिस तरह मैंने अपने readme के अंदर specify किया हुआ है. You can always build the application and test it out locally as well, right? Right now I'm going to skip this part because I want to move forward to the other things क्योंकि चीज़ें बहुत हैं. So you can test it out if you want to, right? ये command है अगर आपको locally इस project को test करना है. यहाँ पे बस अपनी API की जो आप वहाँ पे TMDB पे generate करेंगे वो replace करेंगे, tag करेंगे, नाम कोई भी दे सकते हैं. And yes, it's gonna build the application for you. Then you're gonna run this application. Okay. Now
यू कैन रन दिस एप्लीकेशन एंड ये आपको पता है कि पोर्ट्स हम जो यूज़ करते हैं इट कैन बी एनी, सही है, ये आपका होस्ट पोर्ट होता है द फर्स्ट वन, और ये आपके कंटेनर पोर्ट होती है। सो हम ATT1 पे इसको लॉन्च करेंगे। वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप लोकली टेस्ट कर रहे हैं, कि आपका इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप शुड अलाउ दिस पोर्ट, बिकॉज अदरवाइज दिस वॉन्ट वर्क। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि अगर मेरी ये इंस्टेंस है तो मैंने यहाँ पे सब कुछ अलाउ किया हुआ है बाय द वे सिक्योरिटी ग्रुप में। आई हैव अ लॉट ऑफ रूल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ओपन जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो करते हुए कि मैं जाके एक एक रूल ऐड कर रहा हूँ। बट आपको ख्याल रखना है कि इन सब चीज़ों को करना है। सो 8080 इज़ बेसिकली द डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर जेंकिंस, 9000 इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर SonarQube, 80 तो HTTP 443 HTTPS, 8081 पे मैंने वहाँ पे जिस तरह डॉकर रन कमांड में एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा था, तो इसलिए 8081 ओपन रखी हुई है। सो ये सब चीज़ें मैंने पहले से पॉपुलेट की हुई हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स आपके इन प्लेस हैं व्हेन यू टेस्टिंग इट आउट लोकली इफ़ यू वांट। ओके, सो उस चीज़ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोकल टेस्टिंग पे तो नहीं आ रहे। दिस पार्ट स्टेप 4 इज़ टॉकिंग अबाउट गेटिंग द API की, वी कैन स्टिल मूव फॉरवर्ड। I'll just go ahead and install Jenkins and SonarQube and Trivy onto this instance, right? क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग को चाहिए आगे further। तो starting off with SonarQube, just keep following the commands, सही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हम एक SonarQube का कंटेनर लॉन्च कर रहे हैं, SonarQube उस कंटेनर के अंदर रन करेगा। Just to bring the context back again, SonarQube is a tool for static code analysis। तो ये जो हमारी पूरी रिपॉजिटरी है इसको स्कैन करेगा, पूरे सोर्स कोड को। सो या दिस कैन टेक सम टाइम। ट्रीवी बेसिकली ट्रीवी जो है वो डायरेक्टली जो है वो कर्नल से बात करता है। सो OS लेवल पे जितनी भी चीज़ें हैं ट्रीवी कैन स्कैन दैट, बिकॉज उसकी कर्नल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही होती है। SonarQube इज़ प्योरली सीइंग द क्वालिटी ऑफ योर कोड, जो सोर्स कोड लिखा हुआ है। तो OS लेवल पैकेजेस को SonarQube नहीं स्कैन कर सकता, वो ट्रीवी करेगा। SonarQube देखेगा कि आपने फॉर एग्जांपल 2 डुप्लीकेट लाइंस लिख दी, SonarQube बोलेगा कि 2 डुप्लीकेट लाइंस क्यों हैं। इसको कोड स्मेल कहते हैं, SonarQube अपनी लैंग्वेज में कहता है। तो SonarQube कोड क्वालिटी को चेक करेगा। अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह के वो चीज़ों को पकड़ता है कोड में। हमने कुछ बग्स जानबूझ के रखे हुए हैं सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई दैट। आई होप इट्स डन, टाइम ले रहा है। ओके, तो SonarQube कंटेनर उसने पुल कर लिया, राइट, एंड इट्स रन इट। तो SonarQube अब हमारे पास 9000 पोर्ट पे रनिंग होना चाहिए। So this application, let me just fetch the IP of this instance and port 9000 पे हम देखते हैं कि SonarQube आया है कि नहीं आया। And remember, port 9000 should be open in the security group rules because SonarQube runs on this default port. So SonarQube is here. The password is always admin, जैसे Grafana में होता है, सब में होता है by default। सो इसको हम लोग होने देते हैं। मीनवाइल हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज बहुत चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इंस्टॉल ट्रीवी। ओके, सो यू कैन जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली कॉपी ऑल द कंटेंट एंड यू कैन पेस्ट इट हियर, एंड दिस इज ऑल्सो गोना इंस्टॉल ट्रीवी। And इसके बाद once we have SonarQube and Trivy installed, the next thing is we're gonna install Jenkins. ओके, सो Jenkins की ये काफ़ी बड़ी सी इंस्टॉलेशन आपको दिख रही होगी बिकॉज Jenkins को जावा भी चाहिए, OpenJDK, इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं इंस्टॉल होने के लिए।
So these are just simple things copy pasted from the official documentation, so it should not be very difficult. Instances are, by the way, Ubuntu 22.04. Okay, so let's go ahead and Trivy is installed, and the next step is just installing Jenkins. ओके, मीनवाइल सोनार क्यूब को लॉगिन करके रख लेते हैं. पासवर्ड इज़ admin. So it always asks you to update the password. कुछ भी random password दे दें, but secure. ओके, सो दिस इज़ हाउ सोनार क्यूब बेसिकली लुक्स लाइक. अभी हम इस पे आएंगे, बिकॉज हम कुछ भी मैनुअली नहीं कर रहे, बिकॉज वी हैव अ पाइपलाइन. सो हम आइडियली चाहेंगे कि हर चीज़ पाइपलाइन से हो. ओके, सो जेंकिन्स भी इंस्टॉल हो गया है. It's taking a bit of time. जब जेंकिन्स आ जाएगा तो फिर उसके बाद हमें कुछ प्लगइन्स डालने होंगे, टूल्स सेटअप करने होंगे. इफ़ यू हैव द वर्क विद जेंकिन्स, तो आपको पता है जेंकिन्स वर्क्स ऑन प्लगइन्स. उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हमें जावा का प्लगइन डालना पड़ेगा, Node.js का डालना पड़ेगा, डिफरेंट चीज़ों का डालना पड़ेगा. लाइक इट्स मेंशन्ड, सोनार क्यूब स्कैनर का प्लगइन डालना पड़ेगा. So that's going to be the next step once we have it installed. I don't know ये हुआ कि नहीं हुआ, बहुत स्लो हो रहा है सब कुछ. लेट्स सी. 80 पे चलता है ये. हो गया इंस्टॉल. ओके, सो जेंकिन्स आपको ये देगा और वो बोलेगा इस पाथ से जाके इसको कैट करो और अपना इनिशियल पासवर्ड जान लो, बिकॉज जेंकिन्स थोड़ा सा सिक्योर है फिर भी इस मामले में. तो वो एडमिन पासवर्ड नहीं रखता. आई जस्ट कनेक्ट टू द इंस्टेंस अगेन. Okay. Okay, so this is the initial password जो हमें मिला है Jenkins से. We're just going to copy it to Jenkins and we can continue. So Jenkins first says कि install suggested plugins, so definitely do that. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं. So I guess we're gonna hold up जब तक ये इंस्टॉल नहीं कर लेता. एंड फिर हम ये कुछ 3 important plugins हैं हमारे, right? So Eclipse, it's for Java, Sonar Cube and Node.js. So we're gonna install these plugins next. ये देखिए कि सारे चीज़ें हैं, ये एक्चुअली हम डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम पाइपलाइनिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हैं. तो बस इसको कॉन्फ़िगर करना है. कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट होनी चाहिए, फिर पाइपलाइन में हर चीज़ प्लग एंड प्ले है. आप अपना प्रोजेक्ट उठाएं, वहाँ पर लगाएं, वो पाइपलाइन में जैसे ही आप प्लग करेंगे वो सब उसको ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट में ले जाएगा. Okay, so let's start using Jenkins. So Jenkins is here, right? Now if you go to manage Jenkins and then you can go on to see the plugins. So अब हमें जो plugins चाहिए वो हम available plugins में जाके search कर सकते हैं and we can install those plugins. So एक ये हमें चाहिए था Eclipse, right? It's OpenJDK का plugin. And then we needed Sonar Cube Scanner, this one,
and we also need, I think, Node 16, Node.js plugin. Okay, so we also need Node.js plugin, which is this one. Okay, so I select these three plugins and I click on install, and it's going to say that do you want to proceed without restarting it. So हर बार plugin install करने के बाद we don't want to restart Jenkins because वापस जाके password डालो, username डालो. So we can say that बगैर restart करे ही हम we are okay with that. But कुछ plugins ऐसे होते हैं that do require a restart, that I'm going to tell you. एक हमारे पास भी ऐसा plugin use होगा. So we have our plugins installed. Okay, first चीज़ plugin install करने के बाद tools set करने होते हैं. Go back to Jenkins again. Okay, so you have to go on to tools. अब यही चीज़ें जो Jenkins को बहुत complicated कर देती हैं. So JDK, right now we have to add a tool for JDK. So name हमने देना है JDK 17. अब ये names बहुत important हैं, ये आप कुछ और नहीं दे सकते क्योंकि हमने जो pipeline बनाई है, I'll show you later, the pipeline that I've designed, उसमें these names are very sensitive. So इन names को अगर आप change करेंगे तो pipeline won't work. So we have to make sure कि name सही कर रहे हैं because वो इन tools के through ही आपका environment, runtime environment fetch कर रहा होगा pipeline में. So it needs to match with this name. Install automatically, we can select add installer. You can stay installed from adoptm.net. And Java का जो version, sorry, JDK जो हमें चाहिए, we need the version 17.0.8.1 plus 1. Very specific. Okay. So कोई भी version नहीं चलेगा. Application जिस तरह develop हुई है, it depends on that. So ये version we selected. Okay. So this is the first tool we set up, which is JDK. The second tool we need to set up is Node.js. Okay, and we're going to name it as Node 16 because the pipeline names it that way. And Node.js का version हमें चाहिए specifically 16.2.0. So this is 16.2.0. We select that. The rest of the things we can leave it as it is. So first always click on apply whenever you want to set up a tool and then save it. Okay, direct save करेंगे तो वो apply नहीं करेगा उसको pipeline run करने पे. So this is the first set of tools and plugins that we set up. Let's go on to the repository and see how we have to proceed. The next thing is SonarQube. Okay, so we go back to SonarQube. अब Jenkins को बात करवानी है SonarQube से, right? Jenkins SonarQube से बात नहीं कर सकता जब तक हम SonarQube पे जाके एक टोकन जनरेट नहीं करते. अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं. So first you go to administration, then you can go on to security, users, right? यहाँ पे आप admin user के तौर पे login हुए हुए हो. So you can just go here, update token, and you can enter a token name. Any name can be fine. I'm just saying here Netflix, okay? And we can generate this token. अब ये token हमारे पास आ गया. We can copy this token, and that's all we need for SonarQube. Let's go back to Jenkins. And सबसे पहली thing when you do is जब sensitive data आपने कुछ भी डालना होता है like tokens, secrets, passwords, always use credentials, right? So you go on to credentials, system, global credentials, and the next thing is you add a credential. So इस token के लिए we can go with the secret text option, and the secret जो भी हमने token SonarQube पे generate करके copy किया है we paste it here. ID हम लोग दे सकते हैं इसको sonar token, okay? So we can create this particular credential. Okay, सही है, ये हमारे पास आ गया. अब दूसरी चीज़ Jenkins में जाएंगे. प्लगइन हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं. यहाँ जाके हम सिस्टम में जाएंगे क्योंकि नाउ हमने SonarQube का एक पर्टिकुलर URL बताना है कि SonarQube चल कहाँ रहा है. Jenkins को जाना है और SonarQube से बात करनी है. टोकन तो हमने जनरेट कर दिया बट SonarQube कहाँ चल रहा है Jenkins doesn't know that. चल वो लोकल होस्ट पे ही रहा है बिकॉज इट्स द सेम इंस्टेंस जिस पे हमने Jenkins इंस्टॉल किया उसी इंस्टेंस पे SonarQube भी इंस्टॉल किया, बट स्टिल वी हैव टू टेल Jenkins द एग्जैक्ट पाथ. सो व्हेन यू गो ऑन टू सिस्टम you can go down and you will find SonarQube over here.
सोनार क्यूब सर्वर. ओके, सो यहाँ पे वी ऐड सोनार क्यूब, राइट. इसका नेम हम दे सकते हैं सोनार सर्वर. ओके, एंड सर्वर URL जो है हमारा, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारी EC2 इंस्टेंस है, राइट. ये पब्लिक IP एंड सोनार क्यूब ऑलवेज रन्स ऑन पोर्ट 9000. तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो इट्स HTTP IP एंड पोर्ट 9000. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर मैं गलत IP नहीं दे रहा. ओके, सही. दिस शुड बी द सर्वर URL फॉर सोनार क्यूब. ऑथेंटिकेशन टोकन में हमने जो टोकन जनरेट किया था वो यहाँ पे हम इसको बता देंगे. एंड I think that's it, we're good. So we're going to apply it first, okay, and then we can save it. So अब सोनार क्यूब को हमने completely यहाँ पे setup कर दिया है. So there's nothing with respect to sonar cube that we have to further do. I'll just verify if we're not missing out on anything. Yeah. सोनार क्यूब का प्लगइन इंस्टॉल किया था लेकिन टूल सेट नहीं किया था, तो वो भी करना ज़रूरी है. सो यू कैन से इट एज सोनार स्कैनर एंड ये लेटेस्ट वर्जन है. लेट इट बी एज इट इज़. सो ऐड इंस्टॉलर. या दिस लुक्स फाइन टू मी. लेट्स अप्लाई इट एंड लेट्स सेव इट. सो आई थिंक सोनार क्योंकि बहुत चीज़ें हमने करी है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ हमने क्या किया है. सबसे पहले मैं मैनेज जेंकिंस पे गया था, ठीक है. मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया था सोनार स्कैनर का. उसके बाद मैं सोनार क्यूब पे ख़ुद गया था. वहाँ जाके मैंने एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र्स में जाके एक टोकन क्रिएट किया था. फिर आई केम बैक टू जेंकिंस अगेन. आई वेंट टू सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमें सोनार का सर्वर URL बताना था. तो हमने जो इंस्टेंस की IP है वो एंड पोर्ट 9000 जो सोनार क्यूब की डिफ़ॉल्ट सर्वर सोनार क्यूब की डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो स्पेसिफाई किया URL. एंड देन वी वेंट ऑन टू टूल्स लाइक वी डिड फॉर Node.js एंड JDK. वी सेट अप द टूल फॉर सोनार क्यूब स्कैनर. ओके, सो दैट्स विद रिस्पेक्ट टू सोनार क्यूब. ये सब चीज़ें की हैं. गोइंग बैक टू गिटहब, नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे हम लोग अपनी पाइपलाइन को टेस्ट करेंगे. सो ये पाइपलाइन का फर्स्ट स्टेज है, राइट. मैं डायरेक्टली पूरी पाइपलाइन एक साथ कॉपी पेस्ट करता हूँ जेंकिंस पे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस पाइपलाइन को. तो ओके, इस पाइपलाइन के लिए हमें कुछ और टूल्स भी चाहिए. सो हमने OWASP की बात की थी पहले. सो OWASP डिपेंडेंसी चेक का प्लगइन हमारे पास होना चाहिए, राइट. तो उसको वहाँ पे हमने सेटअप करना है. So let's go ahead and do that. And then we need some plugins for Docker as well, क्योंकि Docker build और बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो वो चीज़ें करना भी ज़रूरी है. So let's go on to Jenkins again and go to plugins again. And I'm going to search for, in the available plugins, I'm going to go and search for OWASP and OWASP dependency check. ओके, सो इस पर्टिकुलर प्लगइन की हमें ज़रूरत है. सो आई एम जस्ट गोना इंस्टॉल दिस एंड ओके, सो वी कैन रीस्टार्ट दिस टाइम बिकॉज OWASP को जब इंस्टॉल करते हैं तो इसको रीस्टार्ट की ज़रूरत होती है. सो मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ एंड लेट्स वेट फॉर जेंकिंस टू रीस्टार्ट. एंड उसके बाद हम डॉकर के कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे. एंड OWASP क्योंकि प्लगइन इंस्टॉल किया है तो उसका और डॉकर का दोनों का टूल भी वी हैव टू सेट अप इन जेंकिंस. आप लोगों को एज ए पर्सनली कि CI/CD टूल में क्या पसंद है यूज़ करना? ईजी क्या लगता है? गिटहब एक्शंस, जेंकिंस करते हैं. जेंकिंस इज़ टेरेबल, बहुत बुरा है जेंकिंस. अब ये बार बार टूल और प्लगइन इंस्टॉल करना ये कौन करता है ये? तो ये हम कॉपी करते हैं एंड पासवर्ड आपको बार बार देखना पड़ेगा जो वहाँ से कैट करके ऑन द इंस्टेंस,
क्योंकि वही एक तरीका है इसका पासवर्ड, वरना आप इसको सेव करके कहीं रख लें. सो लेट्स साइन इन. ओके, सो अब हमारा जो स्टेप था वो था OWASP का प्लगइन इंस्टॉल हो गया, उसका टूल सेटअप करना है और डॉकर के कुछ प्लगइन्स को हम लोगों ने इंस्टॉल करना है. पहले मैं टूल पे जाता हूँ एंड OWASP का जो प्लगइन इंस्टॉल किया उसका टूल सेटअप कर देते हैं. वैसे हम कर रहे हैं, इसके अलावा इसके बजाय अगर कोई और करना हो तो क्या कर सकते हैं, और क्या ऑप्शन है? OWASP डिपेंडेंसी के लिए तो यही सबसे फेमस टूल है. आई एम पर्सनली नॉट अवेयर किसी और टूल के बारे में, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी यही टूल है. सही है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स को टेस्ट करने के लिए सारी डिपेंडेंसीज ये चेक कर लेगा. बेसिकली इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि CVEs को कैप्चर करता है, सो कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ एंड एक्सपोजर्स. सो इट कैन गो अहेड एंड ये मैच करता है अगेंस्ट द नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, जिसमें दुनिया की सारी वल्नरेबिलिटीज़ जो होती हैं, जो एक्सप्लॉइट्स नए नए आते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं. तो कॉमन अटैक्स के अगेंस्ट अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो OWASP इज़ वेरी नाइस, बिकॉज वो डायरेक्ट NVD जो नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस है उससे जाके क्रॉस मैच करके आता है कि वो वल्नरेबिलिटी तो नहीं आपके पास आई. दैट्स वाई इट्स वेरी गुड. सो इसका मैं टूल का नाम रख देता हूँ DP check. ओके, एंड इंस्टॉल ऑटोमेटिकली. अच्छा, स्टूडेंट्स आपके जहन में भी कोई सवाल आए ना तो फौरन आपने हाथ रेस करना है. ये पूरी पाइपलाइन जो बन रही है इसको आपने परफॉर्म करना है बाद में, यानी आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, इसका आपने पूरा पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करना है. ये आपका टास्क है अगला, इसीलिए एक एक स्टेप आपको सिखाया जा रहा है. रात का रिगर्स स्पीकर था, उसमें हमने पूरी एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश वेंचर के अंदर जो काम हुआ था वो आपको दिखाया. उसमें हमने पूरे प्रोसेस से गुजरे नहीं, लेकिन हमने दिखा दिया अंदर कैसे कॉन्फ़िगर हो. अब हम पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, यही प्रोसेस आपने खुद इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह. एंड इंशाल्लाह इट्स गोना बी ईजी, बिकॉज आप खुद देख रहे हैं, मैं भी जाके गिटहब से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपने खुद के रीडमी से, तो इतना मुश्किल नहीं होगा. सो डॉकर का प्लगइन इंस्टॉल करना है नेक्स्ट. ओके, सो हमें 2-3 चीज़ें चाहिए यहाँ तक. वी नीड डॉकर बिल्ड स्टेप, API, पाइपलाइन, कॉमन्स, डॉकर. ये खुद कह रहा है डॉकर बिल्ड स्टेप एक वल्नरेबिलिटी है, बट अभी हम इसको इंस्टॉल कर ही देंगे, कोई बात नहीं, मैं सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ. तो वी जस्ट गोना वेट फॉर इट टू इंस्टॉल. ठीक है, अब डॉकर के प्लगइन इंस्टॉल होंगे. दूसरी चीज़ हम यूज़ करें डॉकर हब, क्योंकि जो हमारी इमेज बिल्ड होगी वो डॉकर हब रजिस्ट्री पे, मेरी पर्सनल डॉकर हब रजिस्ट्री पे पुश होगी. तो अगेन जेंकिंस में क्रेडेंशियल्स में जाके डॉकर हब के क्रेडेंशियल्स के साथ हम लोगों ने सेटअप करना है, क्योंकि उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन नॉट कनेक्ट टू योर डॉकर हब. सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये तो चले इंस्टॉल हो गए प्लगइन्स. वी कैन गो बैक एंड नाउ वी कैन गो टू मैनेज जेंकिंस क्रेडेंशियल्स. ओके, एक क्रेडेंशियल अब तक हम सिर्फ सोनार क्यूब का टोकन जनरेट कर चुके हैं. दिस इज़ आवर सेकंड क्रेडेंशियल which we're generating. So it's going to be for Docker Hub authentication. We can leave the kind as username with password. I'm going to enter my username over here for Docker Hub and my password. And the ID you can leave it as docker, it doesn't matter. ठीक है, you create this particular credential. The next thing is manage Jenkins पे वापस जाएंगे और जाके वहाँ पे टूल सेट करेंगे, क्योंकि जो प्लगइन इंस्टॉल होते हैं उनका टूल हमेशा सेट करना ज़रूरी होता है. यहाँ डॉकर इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे ऐड डॉकर, इसका नाम डॉकर ही रख देते हैं. इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, ऐड इंस्टॉलर, डाउनलोड फ्रॉम docker.com, वर्जन वी कैन कीप एज लेटेस्ट. सो पहले हमेशा अप्लाई करेंगे और अप्लाई होने के बाद सेव करेंगे. सो यहाँ हमारे पास टूल्स आ गए. अब हम लोगों ने एक चीज़ इसके अंदर मिस की है, आई थिंक, और नो इनफैक्ट ठीक है, दैट्स फाइन. सो आई थिंक जो प्री रिक्विजिट सेटअप करने थे जेंकिंस पे वो सब चीज़ें हमने कर ली हैं. वी सेट अप द क्रेडेंशियल्स, ये टूल्स इंस्टॉल कर लिए, या वी गुड टू गो. अब आ जाती है पाइपलाइन. ठीक है, अब ये पूरी पाइपलाइन है जो आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं.
अब इस पाइपलाइन को यहाँ से करते हैं कॉपी और जेंकिंस में जाके अपना पहला बिल्ड प्रोजेक्ट सेट करते हैं. सो आई एम गोना गो टू न्यू आइटम. ओके, आई एम गोना गो टू, लेट्स जस्ट गिव इट अ नेम, नेटफ्लिक्स. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू पाइपलाइन. ओके, पाइपलाइन एंड ओके. एंड यहाँ पे नीचे आ जाएं स्क्रिप्ट ऑप्शन पे. जो स्क्रिप्ट वहाँ से कॉपी की थी यहाँ पे पेस्ट कर दें. ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट को मैं कहीं और वॉक थ्रू कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो अच्छे से नहीं दिख रही. VS कोड पे मेरे पास खुली होगी. सॉरी, ये नहीं है, एक मिनट. या ये दिख रही है आपको स्क्रीन? सही विजिबल है? थोड़ा सा जूम कर दें. ठीक है. पाइपलाइन हमारी ये है बेसिकली, या मैं आपको चलें इधर से दिखा देते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा सही. थोड़ा सा जूम कर दें यहाँ ये छोटा. ठीक है. सो ये पाइपलाइन बेसिकली स्टार्ट होती है उन टूल से जो हमने सेटअप किए हैं. ये मैंने इसलिए कह रहा था कि वो नाम याद रखना ज़रूरी है. अगर आपको नाम चेंज करने कोई मसला नहीं है, पाइपलाइन में यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा. तो ये टूल्स ये फेच करेगा रन टाइम के लिए फॉर JDK and Node.js. ओके, देन इट्स गोना यूज़ द सोनार स्कैनर. ये भी हमने एक टूल सेटअप किया था अगेन मैंने जेंकिंस में जाके. इट्स गोना देन क्लीन अप द वर्क स्पेस बिकॉज हर एक बिल्ड न्यू होनी चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि पुरानी वर्क स्पेस में जो फाइल्स पड़ी हुई हैं वो हमारी नई बिल्ड को इंटरप्ट करें. सो वी गोना ये क्लीन वर्क स्पेस स्टेप हमने ऐड किया है. देन इट्स अनदर स्टेज फॉर गिट चेकआउट. सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड एंड चेकिंग आउट द मेन ब्रांच ऑफ माई रिपोजिटरी. देन कम्स द स्टेज फॉर सोनार क्यूब एनालिसिस. सो सोनार क्यूब एनालिसिस करेगा और ये इस नाम से आपके सोनार क्यूब पे वंस दिस पाइपलाइन रन्स आपको इस नेटफ्लिक्स के नेम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता हुआ दिखेगा यहाँ पे ऑन सोनार क्यूब प्रोजेक्ट्स के अंदर. ठीक है, यहाँ पे खुद ही आ जाएगा वो पाइपलाइन रन होने के बाद. तो इट्स गन बी अबाउट द तो इसके अंदर सारा जो स्टैटिक कोड एनालिसिस उसने किया होगा, हर एक चीज़, कोड स्मेल, सब कुछ वहाँ पे आपको दिख जाएगा. विल सी किस टाइप की चीज़ें इसने आइडेंटिफाई की हैं. Then we have a quality gate setup. Quality gate, anyone knows what a quality gate is? एक IT terminology है, कुछ ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है. Any idea? Quality gates mostly pipelines में यूज़ की जाती हैं कि अगर आप कहते हो कि प्रीवियस स्टेज में कोई चीज़ फेल होती है तो मेरी पाइपलाइन यहाँ रुक जाए, इससे आगे ना जाए. बिकॉज ऑब्वियसली पाइपलाइंस कैन बी एज लॉन्ग एज 200 लाइन्स एंड उसमें पूरी एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट भी हो रही होती है. तो अगर मेरा सोनार क्यूब में लेट्स से मैं कहूँ कि मेरा जो एक थ्रेशोल्ड मैंने सेट किया और वो थ्रेशोल्ड से अबव जो है वो कोड के अंदर बग्स और इश्यूज़ आ गए, अब वो मेरे लिए प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट या वो इवन डेवलपमेंट में जाने के लिए भी रेडी नहीं है कोड. तो मैं यहीं पे क्वालिटी गेट में उसको बोलूँगा कि पाइपलाइन को अबॉर्ट कर दो और यहाँ पे रुक जाए पाइपलाइन. अभी तो मैंने अबॉर्ट पाइपलाइन को फॉल्स किया हुआ है बिकॉज इवन इफ बग्स या फिक्सेस हों हम लोग को पाइपलाइन तो पूरी कंप्लीट करनी है. सो उसके बाद वी हैव द NPM इंस्टॉल स्टेज. यहाँ पे हम जाके सारी NPM डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल कर रहे होंगे. ठीक है, package.json जो हमारे पास है उससे जाके वो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा. एज सून एज इट इंस्टॉल्स द डिपेंडेंसीज द नेक्स्ट स्टेज वी हैव इज़ द OS FS स्कैन. तो फाइल सिस्टम को OS डिपेंडेंसी चेकर पूरा स्कैन करेगा कि जो डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल की हैं उनकी लाइब्रेरीज वैलिड हैं, लाइसेंसिंग वैलिड है, उसके वर्जन्स आउटडेटेड नहीं है. सो इट्स गोना चेक फॉर ऑल दोज थिंग्स. देन वी हैव द Trivy FS स्कैन. ठीक है, Trivy फाइल सिस्टम स्कैन करेगा. किसी ने यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि Trivy भी फाइल सिस्टम को स्कैन कर रहा है, OS भी फाइल सिस्टम को स्कैन कर रहा है, दोनों में फ़र्क है. दोनों में फ़र्क ये कि OS जो है वो आपका थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स तक ही वैलिड है, OS लेवल पे नहीं है. Trivy जो है वो कर्नल से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकता है. जो OS लेवल पे जो आपके पैकेजेस हैं या जो चीज़ें हैं, जब हम apt get अपडेट करते हैं Ubuntu में कितने पैकेजेस आते हैं अपडेट होते हुए, उन पैकेजेस को भी तो हमने देखना है कि वो कर्नल लेवल पे जो लाइब्रेरीज़ हैं वो सिक्योर हैं कि नहीं है. तो Trivy फाइल सिस्टम स्कैन उस केस में यूनिक एंड हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है. इन दिस स्टेज ऑफ द पाइपलाइन वी गोना बिल्ड द डॉकर इमेज, राइट. वी गोना टैग इट, वी गोना इंजेस्ट द V3 API की, TMDB की API की जो मैं आपको पहले दिखाई थी. आप लोग जब रेप्लिकेट करेंगे तो मैंने यहाँ कमेंट्स ऐड किए हुए, यू गाइस कैन ऑलवेज रिप्लेस दिस API की एंड अपनी
जो आपकी डॉकर हब की रजिस्ट्री है, रिपॉजिटरी है, उसका नाम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। वो भी कमेंट्स हैं, सो यू शुड बी एबल टू रिप्लेस इट। देन वी हैव अ स्टेज फॉर ट्रीवी इमेज स्कैन, राइट। सो अब इमेज बिल्ड हो गई, अब उसको स्कैन करना है, राइट। तो जो इमेज बिल्ड हुई होगी उसको हम स्कैन करेंगे, उसके रिजल्ट्स हम इस फाइल पे आउटपुट कर देंगे और एंड में हम लोग डिप्लॉय करेंगे। ऑब्वियसली ट्रीवी इमेज स्कैन मेक सेंस टू बी देयर बिटवीन डॉकर बिल्ड एंड पुश, तो हम नहीं चाहते कि डिप्लॉय होने से पहले हम स्कैन ना करें। सो पहले स्कैन करेंगे, फिर एंड में हम इसको डिप्लॉय करेंगे। दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द पाइपलाइन, जहाँ पे ये चेक करेगा कि अगर कोई इस नाम के कंटेनर एग्जिस्ट ऑलरेडी करता है, बिकॉज एक पाइपलाइन 10 दफ़ा 20 दफ़ा भी चल सकती है, और अगर नाम सेम होगा, टैग सेम होगा, तो पाइपलाइन फेल कर देगा, बोलेगा ऑलरेडी कंटेनर इस पे चल रहा है और आपकी होस्ट पोर्ट बाइंड हुई हुई है, क्योंकि पोर्ट जो है वो एक ही कंटेनर को हैंडल कर सकती है, राइट। सो इसीलिए हम लोग इस स्टेप में जो नेटफ्लिक्स नेम का अगर कंटेनर एग्जिस्टिंग होगा तो हम उसको रिमूव करेंगे, स्टॉप करेंगे कंटेनर को, और फिर नया कंटेनर स्पिन अप कर देंगे सिमिलरली ऑन पोर्ट 8081, जिसका मैंने आपको पहले बताया था। सो लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट दिस पाइपलाइन आउट। मोस्ट लाइकली ये हो सकता है फेल होगी, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं आफ्टर दिस पाइपलाइन फर्स्ट रन। ये क्या कहता है कि आप रूट यूज़र बनो और उसके बाद आप जाके जेंकिंस यूज़र को डॉकर ग्रुप के अंदर ऐड करो और फिर जेंकिंस को रीस्टार्ट करो। ये स्टेप करना पड़ सकता है। सो लेट्स जस्ट टेस्ट द पाइपलाइन एंड लेट्स सी इफ़ वी वांट टू डू इट और नॉट। सो आई विल गो हियर। ठीक है, ये पाइपलाइन यहाँ पे आ गई थी, मैं इसको अप्लाई करूँगा। और चलिए सेव कर लेते हैं। ये क्या हो गया? ओके, सो अप्लाई किया, सेव किया। अब हम पहली बिल्ड को टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये पाइपलाइन रन होना स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ा टाइम लेगी। लेट्स सी इफ यू कैन डू अदर थिंग्स जब तक ये चल रही है। हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते। अब मॉनिटरिंग फेज के अंदर आ जाते हैं। लेट्स सेट अप प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। उसके लिए मैंने एक और क्वेश्चन। जी जी ओएस पे है ना, या ओएस पे इधर है, देखिए यहाँ पे। तो वो ओएस डॉकर प्लगइन्स को नहीं चेक करेगा, ओएस चेक करेगा पूरे फाइल सिस्टम को। उसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स, मॉड्यूल्स, पैकेज डॉट जेसॉन, ये जो पूरी पैकेज डॉट जेसॉन यहाँ पे बनी हुई है, ये जितने ये देख रहे हैं, ये डिपेंडेंसीज हैं, राइट। या इट्स गोइंग टू गो टू द एंटायर फाइल सिस्टम, पूरा कोड, या द करंट डायरेक्टरी, कंप्लीट डायरेक्टरी। सो इट्स गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, एंड वो फिर एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेगा टू दिस डॉट XML फाइल है, वो बना के हमें पब्लिश करके देगा। कुछ चीज़ें मैंने यार्न के ऑडिट्स के कुछ चीज़ों को डिसेबल किया हुआ है, क्योंकि वो फिर ज़बरदस्ती के फ्लैग्स करेगा बहुत सारी चीज़ों को जो वैलिड भी नहीं होते, तो इसको मैंने इसलिए यार्न ऑडिट को डिसेबल किया हुआ है। अदरवाइज जो वैलिड डिपेंडेंसीज़ के इशूज़ हैं वो तो वो कैप्चर करेगा। सो ये पाइपलाइन चल रही है। अब हम लोग अगले फेज़ पे चले जाते हैं, दैट इज़ द मॉनिटरिंग फेज़ ऑफ द पाइपलाइन। सो अब ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करेंगे। अब हम चाहेंगे कि जिस हमारी इंस्टेंस के ऊपर अभी जिस पे हम काम कर रहे थे, जिस पे हमारा जेंकिंस चल रहा है, जिस पे सोनार क्यूब चल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है, राइट। तो उसके लिए प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, ये दोनों को वी विल यूज़ इन दिस प्रोजेक्ट। सो लेट्स एंड फॉर दिस पर्पस अब मैंने एक दूसरी इंस्टेंस भी क्रिएट की हुई है, राइट। आई हैव नेम्ड इट एज मॉनिटरिंग IPA. So I'll go ahead and install Prometheus and Grafana onto this new instance. So simple steps, just keep following it from the documentation. Abhi we're gonna first install Prometheus and then we're gonna install Grafana. So I'm just gonna connect to the instance again, क्योंकि वो idle रहती है तो फिर वो बंद हो जाता है।
Sorry, just a second. Sir, how much time do we have? 20 minutes. 20 minutes. Nicely 18 minutes. Okay, fine. So, कितनी हो गई? पाइपलाइन सर चल रही है अभी तो. चल रही है, ठीक है, Yeah. हो जाएगा आई एम श्योर. हम कॉन्फ़िगर तो कर चुके हैं पूरा. हो जाएगा. नहीं सर, अभी कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट भी है, मॉनिटरिंग भी सेटअप करनी है. हम तो देखते हैं इंशाल्लाह. मैं वो सोच रहा था कि अगर हमें टाइम लगे तो मैं ऑलरेडी करी हुई भी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं अगर टाइम नहीं हुआ तो हम वो कर देंगे. उससे वॉक थ्रू कर देंगे. हाँ. So monitoring के लिए just setting up the Prometheus and Grafana, installing it really quickly, just copy paste. अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये prometheus.yaml फाइल है, ठीक है. Oh sorry, that's gonna come later, never mind. This is just running Prometheus as a service. Okay, Prometheus is running. So Prometheus की default port, let's check it out. Okay, Prometheus is running. सो हमारे पास Prometheus आ गया. ओके, अब हम टारगेट सेट करने होंगे Prometheus में. वो हम करते हैं थ्रू द prometheus.yaml फाइल, राइट. अभी नेक्स्ट स्टेप्स उसी के ऊपर हैं. सो जस्ट पे लिटिल क्लोज अटेंशन टू दिस पार्ट. ओके, सो Prometheus alone doesn't do anything. ओके, Prometheus को मेट्रिक स्क्रैप करने के लिए फ्रॉम एनी सर्वर एनीवेयर इट नीड्स नोड एक्सपोर्टर. सही है. सो नोड एक्सपोर्टर को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा. नाउ वी गोना डू दैट एंड देन वी गोना सेट अप द prometheus.yaml. नहीं, this is T2 large and this monitoring instance is T2 medium, so it's going to charge you a bit. Yeah, नहीं चलेगा. ओके, सो नोड एक्सपोर्टर भी हो गया है and just gonna enable it, start it, इसका status देख लेते हैं. Okay, fine. Node exporter is also installed and running, okay, as a service. The next thing is setting up the prometheus.yaml. क्योंकि यहीं से हमारा Prometheus को समझ आता है कि मुझे कौन कौन से टारगेट्स को टारगेट करना है और कहाँ से मेट्रिक्स को स्क्रैप करना है. सो prometheus.yaml जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है एंड इसका जो डिफ़ॉल्ट पाथ है इट इज़ ऑलवेज /etc/prometheus
Prometheus, and then you have the prometheus.yaml file over here, okay, /etc/prometheus. So just gonna go here and add 2 targets over here, right? तो मुझे 2 टारगेट यहाँ पे ऐड करने हैं, वो मैं अपनी prometheus.yaml की कॉपी कर सकता हूँ. So it's gonna be these 2 jobs and these 2 targets that I'm adding to my prometheus.yaml. Right? So पहली चीज़ मैं बोलूँगा कि खाली जो सर्वर है मेरा उसको स्क्रैप करो और उसके सारे मेट्रिक्स को स्क्रैप करो. So this is gonna be node exporter का default port is 9100 and this port should also be open in the security group rules. ये Okay? आपके अपने डॉक्टर पे जा रहा है जो आपने आईपी उठाया. नहीं नहीं सर, ये पब्लिक मेरी आईपी किस चीज़ का है? इंस्टेंस का अच्छा, जिस पे वो चल रहा है, सही है. और ये जेंकिंस जिस पे चल रहा है उसकी आईपी एंड जेंकिंस की पोर्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. सो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो जेंकिंस जो जिस इंस्टेंस पे चल रहा है वो भी तो मॉनिटर हो, राइट? सो ठीक है. यहाँ पे हम लोग जेंकिंस की पब्लिक आईपी फेच कर लेंगे, वो इस इंस्टेंस पे चल रही है ऑन दिस वन, राइट? दिस इज़ द पब्लिक आईपी एंड so this is the public IP and this is the Jenkins port. Default port is 8080 for Jenkins. तो ये तो हमने टारगेट सेट कर दिए या जॉब सेट कर दी इन द prometheus.yaml. सही है. सो आई एम जस्ट गोना सेव इट एंड हमें इसको रीलोड करना होगा. सो prompt tool इज़ अ टूल जो कि Prometheus के साथ ही आता है. इट्स यूज टू चेक अगर आपका prometheus.yaml इज़ वैलिड और नॉट. सही है. यहाँ पे सक्सेस आया, सो इट्स वैलिड. एंड देन हम लोग इस कर्ल कमांड से Prometheus कन्फिगरेशन को रीलोड कर सकते हैं विदाउट रीस्टार्टिंग इट. सो वी डोंट हैव टू रीस्टार्ट इट ऑल द वे. एंड देन या सो अब जो मैंने अपना Prometheus खोला था, यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे कुछ टारगेट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट? यू सी मेरे पास नोड एक्सपोर्टर आ गया, उसका टारगेट आ गया. जेंकिंस का अभी मेरे पास अप नहीं है. सही है. तो जेंकिंस का इसलिए अप नहीं है टारगेट मेरे पास क्योंकि मेरा अभी जेंकिंस का प्लगइन इंस्टॉल नहीं है फॉर Prometheus. सो आई हैव टू गो अहेड टू माय जेंकिंस अगेन. इस पाइपलाइन का क्या हुआ है? ये तो रन ही हो रही है काफ़ी देर से. मैं इसको स्टॉप करके वापस स्टार्ट कर देता हूँ. मीनवाइल हम बाकी चीज़ें करते हैं. जस्ट गोना कैंसिल दिस. आई थिंक कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या हो रहा है? यूजुअली डजंट टेक दैट लॉन्ग. बिल्ड नाउ. सोनार क्यूब पे देखते हैं इफ इट हैज़ क्रिएटेड दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि वो स्टेज तो गुजर गया था. प्रोजेक्ट्स, ओके. सी ये इतने स्टेज तक तो आ गई थी कि इसने सोनार क्यूब पर प्रोजेक्ट बना दिया. सही है. तो इस तरह से दिखता है सोनार क्यूब. सो यू कैन सी कोड स्मेल्स यहाँ पे बता रहा है 18. अब कोड स्मेल्स पे जाएंगे तो बताएगा क्या क्या मसले हैं आपकी सोर्स कोड के साथ. फॉर एग्जांपल पहला डॉकर फाइल के अंदर उसने बोला कि आपने डॉकर फाइल में एज जो है वो छोटा यूज़ किया है. इट शुड हैव बीन इन कैपिटल. सही है. यहाँ पे when you're specifying the base image. So इस तरह के there are multiple other things that were wrong with the code. So इसने वो identify की. around 18 code smells हैं, ठीक है. यानी 18 issues इसने flag किए. all 18 and sorry 5 of them were minor like this one. Sorry, this one was a major one. And
the rest were, some would be minor as well, like this one. Okay, so 5 minor हैं, 13 major severities के इसने coat smells या bugs identify किए, issues identify किए. And one more interesting thing is कि ये आपको overview में एक चीज़ बता रहा होता है called as technical debt. Anyone knows what technical debt means? एक मिनट, यहाँ पे आ तो रहा था अभी, लेट्स सी. ओके, खैर, आई डोंट सी इट ओवर हियर येट. एडिड डेट तो है. खैर, यहाँ पे वो एक चीज़ दिखा रहा होता है एस टेक, ये रहा 1 hour 43 minutes. कोई सोच सकता है ये क्या चीज़ हो सकती है, टेक्निकल डेट और 1 hour 43 minutes? नो, टेक्निकल डेट बेसिकली मींस कि अगर इसने जो 18 इश्यूज जो इसने कोड स्मेल्स आइडेंटिफाई किए, कहता है कि अगर आप उन सब 18 को जो है वो सेफली रिमूव करो या उनको केटर करो, सो इट्स गोना टेक यू अराउंड 1 hour 43 minutes. या, सो दैट्स व्हाट टेक्निकल डेट मींस. They're not warnings, they were 13 major ones. तो सबकी severity अलग अलग है. Some 5 were minor and 13 were major. For example, I could be using this in different technologies, right? So वो हर steps को भी कैसे detect कर लेता है कोई specific plugins? No. Sonar Cube के पास आपकी पूरी repository है, सारा source code है. फॉर एग्जांपल अगर टाइपस्क्रिप्ट में कोई वार्निंग या कोई ऐसा इशू है वो आपको बता रहा है ना, would this work with any language or framework? Any language? Oh yeah. Any language. So does it use like a generalized AI tool or something like that, or is there something else behind it? Yeah, no idea. Sonar Cube किस तरह develop हुआ है, but it works across different programming languages, so उसका issue नहीं है. जितने भी टूल्स हैं ना, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस पे हुए हैं. पहले क्या होता था, सारे मैनुअली हम करते थे. Yeah. जितने काम ऐसे नहीं कि पहली दफ़ा हो रहे हैं, इससे पहले भी होते थे, लेकिन ये सब एक स्टेप इसको मैनुअली किया जाता था और कई हफ्ते कई महीने भी लग जाते थे. अब उन्होंने क्या किया, उन तमाम स्टेप्स को उठाया, स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और टूल बना दिया. आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया. और पाइपलाइनिंग का फ़ायदा ही है. अब आप सलमान यूँ करें, टाइम शॉर्ट है, अब जो हुआ ना आपको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है ना. उस पर चलें वो कर लेते हैं. ताकि ये जो स्टेप्स हैं इनको समझ में आ गया है, रिपोजिटरी का मालूम है, वो स्टेप्स इनको मैं दे दूँगा तो ये उसको परफॉर्म कर लेंगे. और आपने इतना तो रिकॉर्ड कर ही लिया है, आप उसको पॉज कर दीजिएगा. सर अभी मैं कर रहा हूँ, मैं बस कुबरनेटिस में इसको डिप्लॉय करके एप्लीकेशन तो दिखा दूँ. हाँ, ये कर लेता. अच्छा, सही है, पाइपलाइन वो रन हो जाएगी आपकी. ठीक है. अच्छा, मैं एक मिनट आपको खोल के दिखा देता हूँ. मैं दूसरी जगह पे प्रिपेयर करके रखा हुआ था, तो वहाँ पे यू गाइस कैन गेट एन आइडिया कि वो किस तरह से दिखेगा. सो मेरे पास एक और इंस्टेंस पे पाइपलाइन चलती हुई है, राइट. अब जब ये पाइपलाइन पूरी रन होती है तो ये आपको ये देता है डिपेंडेंसी चेक. ठीक है, जो ओवास में सारी डिपेंडेंसीज चेक की होती हैं. यू गेट एन आइडिया. अब ये देखें, ये सारी जो वर्नेबिलिटीज़ हैं ये कोई नई वर्नेबिलिटीज़ नहीं है. ये वो वर्नेबिलिटीज़ हैं जो कि कॉमनली नोन हैं, या ये नेशनल वर्नेबिलिटी डेटाबेस से इंजेस्ट की हुई हैं. सो इसने ये सारी वर्नेबिलिटी उठा ली कि आपने जो फॉर एग्जांपल package.json में ये अपनी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स यूज़ किए, उनमें ये मसले हैं. सो इट गिव्स यू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, अ रेफरेंस, मिटिगेशन. आप फर्दर जाएंगे रेफरेंस पे, आपको मिटिगेशन भी मिल जाएगी, किस तरह मीडिएट करना है, रिजॉल्व करना है. सो OWASP डज दिस. ओके, इसी तरह इफ़ आई गो ऑन टू द पाइपलाइन, ये ट्रीवी के भी आउटपुट्स आपको दिखा देगा. सो ये ट्रीवी जब इसने पूरा फाइल सिस्टम स्कैन किया वो, ये ट्रीवी जब इमेज स्कैन की वो, यहाँ पे इसका व्यू इतना अच्छा नहीं आ रहा. मैं आपको डायरेक्टली इंस्टेंस पे दिखा देता हूँ, इसका व्यू थोड़ा बेहतर आता है.
सो जेंकिंस की जो वर्क स्पेस होती है वो होती है /var lib jenkins workspaces, the name of your project, in our case Netflix, ठीक है। यहाँ पे TV, राइट। सो ये आपको अभी थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, बट इस तरह से ये सारे जो है वो कैप्चर कर लेता है ट्रीवी फाइल सिस्टम स्कैन कि आपके जैसे पैकेज लॉग डॉट जेसॉन में क्या क्या चीज़ें थी, कितनी मीडियम और कितनी हाई सेवेरिटी के इश्यूज़ थे, व्हाट वर दोज इश्यूज़ एग्जैक्टली, हाउ कैन यू फिक्स देम। वो भी पूरा व्यू नहीं आ रहा इस पर अनफॉर्चुनेटली, बट यू गाइस कैन चेक इट आउट। ये भी बता देता है, और जो इसने इमेज को स्कैन किया हुआ होता है ये उस इमेज का भी बता देता है। लाइक इसके अंदर इसने एक और फाइल क्रिएट की थी कॉल्ड ट्रीवी, बिकॉज पाइपलाइन में वो स्टेप्स हैं कि उसने ये फाइल्स क्रिएट करनी थी स्कैन करने के बाद। सो इट वॉज ट्रीवी इमेज डॉट txt। सो ट्रीवी इमेज डॉट txt के अंदर आपको सिविरिटीज़ बता सकता है, लाइक हाई सिविरिटी फ्लैग कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर इशू। इफ़ यू गो ऑन टू दिस लिंक, सही है, अगर आपको डिटेल जाननी है, एक्चुअली मिटिगेट करना है उस इशू को, तो इस लिंक पे जाएंगे। एक्वा की वल्नरेबिलिटी डेटाबेस है, यहाँ पे आपको वो बता देगा पूरा इशू, सही है, विद द रेफरेंस नंबर ऑफ कोर्स, और उसकी डिस्क्रिप्शन एंड पोटेंशियल मिटिगेशन। सो यू गेट एवरीथिंग, राइट। एंड वो ये भी बता रहा है कि देखो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स में ये कितना क्रिटिकल है। सो उबंटू जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इतना नहीं है, बट रेड हैट पे ये काफ़ी क्रिटिकल इशू है। तो दिस इज़ व्हाट ट्रीवी एंड OWASP कैन डू फॉर यू, सही है। अब फाइनल स्टेप, डिप्लॉइंग दिस प्रोजेक्ट ऑन कुबरनेटीज़। तो उसके लिए मैंने EKS पे, सही है, इलास्टिक कुबरनेटीज सर्विस पे ऑलरेडी एक क्लस्टर सेटअप किया हुआ है, बिकॉज क्लस्टर सेटअप करने के लिए इट कैन टेक यू अबाउट गुड 15-20 मिनट्स। तो अब रिसेंटली व्हेन आई गॉट टू नो दिस वेरी रिसेंटली दैट AWS ने बहुत आसान कर दिया है क्लस्टर बनाना कुबरनेटीज़ का। इवन फॉर एनी वन हु डज नॉट हैव कुबरनेटीज़ नॉलेज, दे कैन क्रिएट अ क्लस्टर, क्योंकि EKS has launched something called as auto mode. So if you go on to create a cluster, you can see it this, right? Quick configuration with EKS auto mode. So with auto mode, you can do everything like सिर्फ VPC subnets बताने, ये role भी आप इसमें खुद बना के देगा. You can just go and click on create recommended role and it will do that for you. So it's very easy to create a cluster now, right? I already have a cluster created called Netflix. So I'm gonna go in there, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि आपको नोट ग्रुप में जाके नोट ग्रुप बनाना पड़ता था, उसमें नोट्स डालने पड़ते थे, वो सब चीज़ें अब ऑटो मोड ने आपके लिए आसान कर दी हैं। तो उसने खुद ही अपना नोट्स इसने सेटअप किए हुए। ये इंस्टेंसेस जो आपको दिखनी है मैंने नहीं बनाई, ये EKS ने खुद सेटअप की है। तो वी हैव द क्लस्टर रेडी, ठीक है। अब क्विक वर्क के लिए हम लोग क्लाउड शेल यूज़ कर सकते हैं यहीं पे ना, AWS क्लाउड शेल, एंड उससे आपको कंसोल या टर्मिनल का एक्सेस मिल जाता है। सो इट मेक्स योर वर्क वेरी स्विफ्ट। ओके सबसे पहली चीज़ टर्मिनल में उसको नहीं पता कुबरनेटीज़ क्लस्टर कौन सा है, कहाँ चल रहा है, तो आपको पहले कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, राइट। उसकी कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पहले क्लस्टर कॉन्टेक्स्ट सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है थ्रू दिस कमांड, राइट। सो गो इन देयर एंड यहाँ पे आपने ये कमांड दी, रिप्लेस दिस विद योर रीजन। इन माई केस माई रीजन इज़ US East 2 and my cluster name is Netflix. So ये context set करना होता है। Once this is done, now it knows that okay मुझे इस cluster से बात करनी है। Okay, now Argo CD हमने GitOps की बात की थी, सही है। तो Argo CD की इंस्टॉलेशन के लिए मैंने वो लिंक वहीं पे रेपो में दिया हुआ है। इट्स वेरी सिंपल, थोड़े से कमांड्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है एंड यू कैन सेटअप Argo CD। सो अपने क्लस्टर पे आई एम डूइंग द सिमिलर वन, सही है, यही फॉलो कर रहा हूँ गाइड, एंड आई एम सेटिंग अप Argo CD। anyone has any confusion regarding Argo CD होता क्या है, अगर नहीं समझ आया हो, so while I'm installing it and setting it up I can explain. Argo CD
Argo CD basically GitOps tool है. GitOps means के there's a Kubernetes. Have you worked with Kubernetes before? I know what it's about. Okay, so for example, you have a Kubernetes cluster like we have EKS, and you have a Git repository for your application. Now, every time you make changes to the Git repository, there's no way कि वो automatically जो है वो synced रहे with your cluster state, right? So Git state and cluster state दो अलग चीज़ें हैं. GitOps जो है वो solve करता है problem, so it synchronizes your Git state with your cluster state. So अगर आपने Kubernetes में something called YAML files के through सब कुछ होता है, you have a deployment file, right? आपने deployment file में कुछ भी change किया, Git में push किया, वो आपके Git वो Argo CD ने पिकअप किया आपके Git repository से, उसने आपके cluster पे वो चीज़ को apply कर दिया, so आपकी application seamlessly without any downtime update हो जाएगी या roll out हो जाएगी again. In Kubernetes world we say roll out. So it's like continuous deployment for your infrastructure. Yes, it's continuous deployment. Pipeline is only continuous integration. We call it CI/CD. I don't know why we do it. There's nothing CD about it. And pipeline से लोग करते हैं, लोग deploy करते हैं. मैं इसी Jenkins की pipeline के अंदर deploy stage डालता और मैं इसी application को deploy कर देता. But that's not a good practice. पाइपलाइन से डिप्लॉयमेंट्स नहीं होनी चाहिए, पाइपलाइन से इमेज बिल्ड होनी चाहिए, रजिस्ट्री तक जानी चाहिए, बस उतना ही. Expose Argo CD server. चीज़ें बहुत थी सर, मॉनिटरिंग भी रह गई. आपने ये कर दिया था शायद बैच. मैंने कर दिया था. हाँ. अच्छा, कहाँ गया? अब आपका ऑनलाइन सेशन कर लेंगे हम. ज़रूर सर, ज़रूर. इसको एक्सपोर्ट हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स हैं. ठीक है सर, ये एक्सपोर्ट करते हैं और ये एक्सपोर्ट करते हैं. भाई कभी कभी तो इंडस्ट्री के लोग आते हैं. एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स की पाइपलाइन के बाद बनी क्या हुआ क्या एंड में. हाँ, वो इंटरेस्टिंग है, वो अब दिख जाए यार. सो आर्गो CD की इंस्टॉलेशन पे ये एक AWS में लोड बैलेंसर क्रिएट कर देता है, राइट? सो वो लोड बैलेंसर को, ये बेसिकली वो पाथ है जिस पे हमारा आर्गो CD का UI आएगा, और ये पाथ हमें आर्गो CD का, और ये मैं भी एको कर रहा हूँ, ये हमारा पासवर्ड होगा. तो पहले तो इस पाथ पे जाते हैं और आर्गो CD को देखते हैं. तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैंने सिर्फ ये गाइड फॉलो किया. आप भी कर सकते हैं ऑन माई गिट रिपोजिटरी. तो ये पासवर्ड आया, ये इसका यूज़र नेम आया, राइट? We sign into Argo CD, so this is how Argo CD looks. So as soon as you log into Argo CD, the first thing you have to do is you have to sync your repository, right? Or connect your repository. So we're going to connect to the repository using HTTPS. We can leave this as default. यहाँ पे हमारा repository URL आएगा, वो मैं यहाँ से copy कर सकता हूँ, बल्कि copy it from here. Okay, so this is gonna be my repository URL. Username, password की ज़रूरत नहीं, because this is a public repository, not a private one. So we're just gonna go ahead and connect it. If everything looks good, connection successful आएगा. Okay. The next thing you do is you create an application on Argo CD. यहाँ पे you give your application a name. I'm gonna give it Netflix. Project name. Default. Policy automatic कि जब भी वहाँ change हो वो sync automatically हो जाए with Git, and your cluster is always in sync. Repository URL जो हमारी GitHub repository है वो पाथ. ओके, ये पाथ बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि ये जो आर्गो CD जो देख रहा होगा वो देख रहा होगा इस फोल्डर को,
ये कुबरनेटीज़ का जो फोल्डर बना हुआ है, क्योंकि जो हमारी डिप्लॉयमेंट की और वो जो बाकी कुबरनेटीज़ रिलेटेड फाइल्स हैं वो इस फोल्डर में प्रेजेंट हैं। तो हमें ये पाथ बताना पड़ेगा कि ये पाथ है जिसको आपने कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, देखना है। कुछ भी यहाँ पे चेंज होगा वो क्लस्टर स्टेट जो है उसमें अप्लाई कर देगा और उसको सिंक्रोनाइज कर देगा हमारे क्लस्टर को विद माई गिट स्टेट। सो दिस इज़ द पाथ और द फोल्डर जो इसने वॉच करना है। सो ये केस सेंसिटिव होता है, कुबरनेटीज़ का के कैपिटल है, छोटा नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट हो गई। दिस इज़ द सेम मतलब कॉन्सेप्ट जो कि टेराफॉर्म में हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ कोड टूल्स में करते हैं कि मैनुअली जाके चीज़ करी तो वो अगर हमारी स्टेट से मैच नहीं कर रहा हुआ तो इश्यूज़ हैं। दैट्स द ओनली रीज़न वी डू दिस कि मैनुअली करना ना पड़े, वरना हम करें क्यों। Cluster URL, namespace, Kubernetes have namespaces, so we're gonna say it's gonna be in the default namespace. Students are waiting outside. जल्दी से. Okay, let's create this. Okay. अब ये हो गया। अब मैंने इस एप्लीकेशन को सेटअप किया। Kubernetes is a long discussion, short story। मैंने इस एप्लीकेशन को सेटअप किया टू रन ऑन नोड पोर्ट। नोड पोर्ट Kubernetes में एक चीज़ होती है कि जिस नोड पे आपकी एप्लीकेशन जाके डिप्लॉय हुई है उस नोड की आईपी एंड कोई पोर्ट, राइट। सो ये 3000 एंड 30,007 पे ये रन कर रही है और जिस इंस्टेंस पे लॉन्च हुई है उसकी ज़रा आईपी हम देख लेते हैं। ये हमारे EKS के नोड्स में जाएंगे, कंप्यूट नोड्स, इस इंस्टेंस पे ये लॉन्च हुई होगी, राइट। तो मुझे बस इस इंस्टेंस की आईपी चाहिए एंड पोर्ट 3007 आई हैव। तो उसके बाद हम एप्लीकेशन रन होती हुई देख सकते हैं। सो इस EKS के नोड पे इसने लॉन्च किया एंड दिस इज़ द पोर्ट 30,007। सो दिस इज़ हाउ योर एप्लीकेशन लुक्स लाइक। ओके, या सो दिस इज़ द होल आइडिया। मतलब ये ऐसे नहीं है, चलती भी हैं। हाँ, ऐसे दिखाने के लिए नहीं है। सो या दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस। तो ये पूरी एप्लीकेशन क्या कर रही है सर? सर नेटफ्लिक्स है। आई नो, नेटफ्लिक्स उससे कनेक्ट कर दिया। नो, ये नेटफ्लिक्स का क्लोन है, ये खुद नेटफ्लिक्स नहीं है। तो वो एप्लीकेशन जो डिज़ाइन हुई थी ये नेटफ्लिक्स क्लोन प्रोजेक्ट है। तो ये एक्चुअली पाइपलाइन में जो हमने एक्टिविटी की, हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन को उठाई और उसको यहाँ पे चला दिया क्लोन। एग्जैक्टली, कोई हमने उसके पीछे एनालिटिक्स या वो वाला काम नहीं किया। नहीं, ये एप्लीकेशन तो आप समझे, हमने ये जो TMDB मैंने दिखाया था उसकी API की हमने ली। हाँ। और बाकी जो एप्लीकेशन जिससे डिज़ाइन हुई हुई है वो कोई भी एप्लीकेशन आपने बनाई उसको आपने किस तरीके से डिप्लॉय करना है। अब जो मैं चेंजेस करूंगा वहाँ पर पीछे कोड में, तो पाइपलाइन बनी है, वो कोड को वो तो पूरा sync चेक होगी। करते हुए यहाँ तक प्रोडक्शन में ले आएगा। वो ले आएगा, क्योंकि खाली पाइपलाइन हमें कंटिन्यूस इंटीग्रेशन भी हो गई और Argo CD के साथ कंटिन्यूस तो डिप्लॉयमेंट भी हो गई। एक्चुअली वो जो हमने लेफ्ट पे लेकर आए थे राइट से प्रोडक्शन वाले को, अब हमने क्या किया, ये डेवलपर है और ये प्रोडक्शन है जो आपको नजर आ रही है।